Hello everyone, this is paper first of BA part first, foundations of political science, and in this video we will discuss about liberty. So the term liberty has been derived from the Latin word liber, which means free from all shackles. The Latin word liber denotes the absence of all restraints, but as a matter of fact, liberty in the sense of complete absence of all restraints is not possible. So law is the condition of liberty. Here comes the definition according to Professor Seeley. Liberty is the opposite of over-government. So liberty is a very precious condition in a state without which human beings cannot develop their personality, which is the sole aim of a person. Next one is two aspects of liberty, or we can say positive and negative conceptions of liberty. So let's understand what is the meaning. Liberty has two phases, positive and negative. The positive concept of liberty admits that there must be compulsion if liberty is to have a practical meaning, whereas the positive view of liberty expresses the freedom to do something. By negative liberty, it means that there shouldn't be any hindrance in the way of one's actions, and Professor J.S. Mill supports negative liberty. He maintained that there shouldn't be any restraint imposed upon man and his actions. Next we will understand there are different kinds of liberty. So let's understand one by one what are their meanings. So first one is natural liberty. First of all, we have the concept of natural liberty, which indicates unrestrained freedom to do whatever one likes. John Locke maintained that in the state of nature, people enjoy the right to life, liberty, and property. So these are the three natural rights. Natural liberty, form of natural, according to what has been supported by John Locke: right to life, right to liberty, and right to property. But it is absolutely incorrect, because it is only the state that guarantees the enjoyment of these rights, and in the absence of the state, the question of the enjoyment of human rights does not arise. Second one is civil liberty. We have the concept of civil liberty, which means the rule of law, and civil liberty indicates that absence of those restraints which are not reasonable and legitimate. It refers to the liberty enjoyed by a man in the society. It prevails in the state. It denotes the enjoyment of our rights within the limits of law, and the protection of civil liberty is guaranteed by the law. Next one is political liberty. Thirdly, we have the concept of political liberty, which means liberty of citizens to participate in the political life and affairs of the state. By political liberty, Lowski means the freedom of the individual to participate in the affairs of the state, and political liberty includes here are the main things, that political liberty includes minimum rights, and these rights are the right to vote, the right to contest elections, the right to hold public office, the right to express political views and criticize the government, and the right to petition, etc. We have all these political rights. Next one is personal liberty. Personal liberty means we are, according to thinkers, personal liberty in this, we are totally free to do whatever we want in our personal matters or affairs. So let's understand. We have the concept of personal liberty, which means the availability of those conditions in which the individual can act as he pleases without being under any type of arbitrary or illegitimate restraint, and every individual has the right not to permit any other individual to interfere in the affairs of his personal life, and every individual should have the liberty to dress, food, standard of living, marriages, and education of children, etc. Next one is economic liberty. That means the liberty to earn one's daily bread. In simple words, we can say that every individual, regardless of the distinction of caste, color, creed, should have liberty to earn his livelihood by fair means. And the last one is national liberty. So national liberty, as we all know, that the liberty of the nation or the country, and national liberty exists where the nation or the community is independent and sovereign. And as a matter of fact, national liberty is another name of national sovereignty. Every state or nation wishes to remain free, and without independence, the progress of the nation or the state is not possible.
आज हम लोग बात कर रहे हैं हमारा एक नया जो पागम है, जो हमारे पास में एक नई कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग कहते हैं स्वतंत्रता। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। जब हम लोग स्वतंत्रता का अर्थ करते हैं तो हमारे लिए वो जानना जरूरी है कि स्वतंत्रता का जो इंग्लिश वर्ड है लिबर्टी, वो उसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन वर्ड लिबर से। और जो लैटिन वर्ड लिबर है, इसका खुद का मतलब होता है कि सभी प्रकार के प्रतिबंधों से बिल्कुल मुक्त। तो अकॉर्डिंग टू दी वर्ड लिबर्टी, जो कि लैटिन वर्ड लिबर से निकला है, इसका अर्थ होता है सभी प्रकार के प्रतिबंधों से बिल्कुल फ्री, बिल्कुल मुक्त। किसी भी प्रकार के कोई भी प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर हम लोग रियल में देखें, वास्तव में हम लोग देखें, तो जो स्वतंत्रता है, इस तरीके की स्वतंत्रता पॉसिबल ही नहीं है जहाँ पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध ना हो। इसीलिए विचारक ये मानते हैं कि स्वतंत्रता की एक आवश्यक कंडीशन या शर्त है स्वयं कानून। इसके बाद में हमारे पास में काफ़ी अच्छी कोटेशन या डेफिनेशन हमारे पास में आ जाती है, जो कि प्रोफेसर सीले के अनुसार है, जिनका ये कहना है कि जो स्वतंत्रता है ये अति शासन की विरोधी है। तो इस प्रकार से जो स्वतंत्रता है हमारे खुद के व्यक्तित्व के विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद में हमारे पास में स्वतंत्रता के दो पक्ष आ जाते हैं, एक होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक। जब हम लोग सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि हमें काम करने की, हमें किसी भी चीज़ की हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर उचित प्रतिबंध होने चाहिए। जबकि हमारे पास में एक और कॉन्सेप्ट है नेगेटिव लिबर्टी की, नकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध ना होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे पास में दो कॉन्सेप्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज सकारात्मक स्वतंत्रता, दूसरा है नकारात्मक स्वतंत्रता। तो सकारात्मक स्वतंत्रता मतलब हमें स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर उचित प्रतिबंध होने चाहिए। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है हमारी स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इसके बाद में हमारे पास में सपोर्टर आ जाते हैं। ये देखिए आप, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे पास में सपोर्टर आ जाते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता के सबसे बड़े समर्थक जो हैं वो हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। इसके बाद में हमारे पास में स्वतंत्रता के प्रकार आ जाते हैं, वन बाय वन हम लोग इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास में आ जाता है प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि एक व्यक्ति वो सभी कार्य करने के लिए स्वतंत्र है जो वह करना चाहता है। और यहाँ पर हमारे पास में प्रमुख विचारक आ जाते हैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जॉन लॉक, जिनका ये मानना है कि प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत व्यक्ति इसी प्रकार की स्वतंत्रता का उपभोग करते थे जिसके अंतर्गत उन्हें राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी प्राप्त था, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। लेकिन वास्तव में ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि केवल स्टेट या राज्य होता है जो कि हमें इन अधिकारों की या इनकी गारंटी देता है, और राज्य के अस्तित्व के बिना इस प्रकार के राइट्स या जो भी हमारे पास में स्वतंत्रता है ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा आलोचक कहते हैं। दूसरा आ जाता है हमारे पास में सिविल लिबर्टी आ जाती है, नागरिक स्वतंत्रता आ जाती है। नागरिक स्वतंत्रता का सीधा सा मतलब होता है कानून का शासन, और कानून के शासन का अर्थ होता है कि कानून सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होंगे, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे, किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, और जो कोई व्यक्ति उन कानून का उल्लंघन करता है उसे दंड दिया जाएगा। थर्ड वन हमारे पास में आ जाता है पर्सनल लिबर्टी। तो पर्सनल लिबर्टी का मतलब होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता बिल्कुल सिंपल है, व्यक्ति अपने पर्सनल मामलों में, हमारे अपने निजी मामलों में हर व्यक्ति अपने मैटर्स को लेकर, अपने मामलों को लेकर बिल्कुल स्वतंत्र है। अपनी निजी जिंदगी में हर व्यक्ति पूरी तरीके से स्वतंत्र है। हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे वो टू इसके अंतर्गत आ जाता है, जैसे हमारी ड्रेस है, फूड है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, मैरिज है, बच्चों की शिक्षा दीक्षा है, इन सब चीज़ों को, क्योंकि हमारे पर्सनल मैटर्स हैं, हमारे पर्सनल अफेयर्स हैं, तो इन सब में एक व्यक्ति पूरी तरीके से स्वतंत्र है, जिसे हम लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में राजनीतिक स्वतंत्रता आ जाती है। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ होता है राजनीतिक मामलों में भाग लेने की स्वतंत्रता, जिसके अंतर्गत कुछ हमारे पास में चीज़ें आ जाती हैं, जैसे
कुछ राइट्स आ जाते हैं जिसके अंतर्गत आपको मत देने का अधिकार होता है, चुनाव में खड़े होने का, चुनाव लड़ने का अधिकार रहता है, किसी भी जो सार्वजनिक पद है उसको ग्रहण करने का अधिकार रहता है, अपने जो राजनीतिक विचार उनको आप अभिव्यक्त कर सकते हैं, सरकार की आलोचना कर सकते हैं, याचिका का अधिकार इसके अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ होता है हर व्यक्ति को अपनी आजीविका अर्जित करने का अधिकार है, और बाय फेयर मीन्स एंड यहाँ पर जो कास्ट है, कलर है, क्रीड है, जाति, रंग, इनके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और लास्ट हमारे पास में आ जाता है नेशनल लिबर्टी, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ होता है एक देश की या राष्ट्र की स्वतंत्रता, और इसका अर्थ यह भी होता है कि जो एक राष्ट्र है वो स्वतंत्र है, सॉवरिन है, संप्रभु है, और हर राज्य या राष्ट्र है वो अपनी स्वतंत्रता चाहता है, और जिसके बिना कोई भी देश या राष्ट्र है, जो भी राष्ट्र है वो उसके बिना प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। So that's all for today from my side. Thank you very much.